So, hello there. Please do be this side. On behalf of Indian cyberspace, I welcome you all to our today's session. So, basically, what we do here, we bring each and every information related to cybersecurity and cloud computing, whatever the questions, no matters what's there in your mind, will bring each and every information, every bit of information towards you, so that you will be aware of the related trending technologies, what is happening in the world. So let's without wasting any time, let's start for today's session. So our today's session is regarding this cloud computing and basics, and also of cloud security. So before starting this session, I would like to tell you, we'll keep this session bilingual, so that each and everyone will able to understand it in a layman word. Okay, so what I want to say before starting this session, I would like to tell you a short and sweet story related to history of the cloud computing. So basically जब 1960s में एक इंटरनेट जब उतना पॉपुलरली स्टार्ट भी नहीं हुआ था, वो टाइम की बात है कि तब वो टाइम पे फिर धीरे धीरे जैसे इंटरनेट ग्रो करने लगा तो सारी चीज़ें डिजिटली अवेलेबल होने लगी. तो वो टाइम पे क्या हुआ कि सेल्स फोर्स नाम की एक कंपनी ने, उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने अपना एक नेटवर्क बिल्डअप किया, तो सब यूज़र्स को उसको यूज़ करने दिया. तो यूज़र्स ने जब उसको यूज़ करके उस चीज़ के बारे में उनको जब फीडबैक दिया, तो फीडबैक देने के बाद तब सेल्स फोर्स नाम की मतलब उस कंपनी ने कि ये कंक्लूजन निकाले कि आने वाले टाइम में ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मीन्स फील्ड रहेगा जो बहुत डिमांड में रहेगा एंड बहुत ट्रेंडिंग रहेगा. तो उस टाइम से फिर आफ्टर 1960 से इंटरनेट उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन तब 1990s में तब से जब ये सारी चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई, तब से ये क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया मार्केट में. एंड देन फ्रॉम दैट टाइम फिर न्यू कंपनीज आने लगी. अब तो बहुत सारी एग्जाम्पल देने गए तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, देन अलीबाबा एंड IBM एंड मल्टीपल कंपनीज आर देयर जो अपने क्लाउड सर्विस को प्रोवाइड करती हैं. सो बेसिकली क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये आप लोग ने वर्ड सुना रहेगा. क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड आर्किटेक्ट है भाई वो, ये ऐसा है, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर है, ये मीन्स ये क्लाउड में होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. हम आज क्या देखेंगे, विल सी व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग, what is cloud computing, then types of cloud computing, various types of the CSPs present in our market. Then in from that the bunch of the CSP will see the Microsoft Azure solution, and then what is the cloud security and why the cloud security is needed in our world. So basically let's move ahead. अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो फ्रेंड है, एक रजनीश है एंड एक निकेश है. सो बेसिकली अभी वाई क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स, अभी हमको तो ये तो थोड़ा तो पता चला कि क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स हो क्या रहा है. देन अब स्टार्ट करते हैं कि वाई क्लाउड कंप्यूटिंग नेसेसरी क्यों है. तो एक अभी रजनीश ने अपना नया एक स्टार्टअप डाला है. सो रजनीश इज आस्किंग टू निकेश हे निकेश, आई एम स्टार्टिंग माई न्यू कंपनी, सो कैन यू प्लीज टेल मी द रिसोर्सेज दैट आई नीड टू सेट अप ऑन माई ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर. So Nikesh is yep Rajneesh, you can definitely set your resources on on-prem setup, but instead of going for the cloud computing, can you go Nikesh is telling to Rajneesh, instead of going towards the on-premises databases, so you have to go towards cloud computing because it's a trending. So Rajneesh is hey Nikesh, I don't know anything about this cloud computing. I don't know a single letter, a single ABCD of also this cloud computing. So can you please differentiate between this on-premises databases and the cloud computing? So Nikesh is yep, I can do. So how is Nikesh is telling on-premises and cloud computing, how this both are differentiated. Let's see it. So in on-premises databases, we have a poor data security, and in cloud computing we have a good data security. जो भी हम डेटा on-prem databases में स्टोर करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी उतनी नहीं रहती as compared towards the cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग में हमको डेटा की सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है. एंड नेक्स्ट थिंग जो अपना हो गया कि लार्ज स्पेस अमाउंट नीडेड फॉर द सर्वर्स. अब जो भी सर्वर हम इम्प्लांट करेंगे अपने यहाँ पे प्रेमिसेस में, तो उसकी जगह ज़्यादा बढ़ती जाएगी एज आवर डेटा इंक्रीजिंग. तो वैसे से हमारे सर्वर की
प्लेस भी बढ़ती जाएगी, तो मीन्स इधर वही लिखे कि लाइक लार्ज स्पेस अमाउंट नीडेड फॉर द सर्वर्स। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक सर्वर स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्यों? क्योंकि हम क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं ना, रियल टाइम में हमारे पास सर्वर नहीं, बट वी आर स्टोरिंग अवर डेटा इनटू द सर्वर जो कहीं और इम्प्लांट किया गया है। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक लेस चांस ऑफ डेटा रिकवरी। सो अगर हम ऑन प्रेमिसेस डेटा बेसिस में देखें तो डेटा अगर एक बार डिलीट हो गया या परमानेंटली डिलीट हो गया तो उसको रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देन अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी करके एक ऑप्शन हमें मिलता है। लाइक जब हम अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसको ऑन अगर हम लोग ने किया तो मीन्स अगर डेटा डिलीट भी हो गया तो डिलीटेड डेटा भी हमको आगे फ्यूचर में मिल सकता है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग रिलेटेड टू दिस क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड द अनदर थिंग इज लाइक एक्सपर्ट रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सर्वर्स दैट आर present into the on-premises databases. So basically what I want to say here कि to maintain the servers that you had implanted on your on-premises you need means an expertise level guy or an expertise level means man to maintain each and everything. So but the thing is not required in our cloud computing, so no expert needed, not required for the maintenance of the server. Yes, because we don't have a physical servers, we are just putting our data in some servers which are present somewhere else. So basically they are maintaining, we just have to take a subscription, we just have to put our data into there and that's it, and they manage each and everything. The next thing is like lack of flexibility and high level of flexibility. So flexibility is like अगर मैंने अपना डेटा यहाँ सर्वर में रखा, अगर मेरा मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, सो बेसिकली जस्ट एन एग्जांपल लेते हैं कि मैं यहाँ से दिल्ली, मुंबई में हूँ, मुंबई से मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सो अगर मेरे को मेरे ये इस डेटा का एक्सेस दिल्ली में चाहिए तो मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मैं सर्वर लेके जाऊँ, ठीक है। अब सर्वर यहाँ से दिल्ली, इतना बड़ा सर्वर तो मैं लेके जा नहीं सकता। सो मैं क्या काम करूँगा कि तब मेरे लिए डेटा एक्सेस करना दिल्ली में उतना पॉसिबल नहीं। सो मैं क्या काम करूँगा कि लाइक अगर कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाए कि जिससे मैं फ्लेक्सिबल हो जाए, मेरा डेटा अगर फ्लेक्सिबल हो जाए, यहाँ भी मैं यूज़ कर सकूँ, वहाँ भी यूज़ कर सकूँ, तो उसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है। तो हाई लेवल फ्लेक्सिबिलिटी कैसी हो गई कि लाइक मैं एक जगह अगर स्टोर कर दिया तो उसको मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने पे जाऊँ, मेरे को वो डेटा मिल जाएगा विथ क्रेडेंशियल्स, विथ माई क्रेडेंशियल्स। The next thing is like no automatic update is present into the on-premises databases. तो on-prem जो database, जो भी data servers हैं, तो उनमें automatic update नहीं होता है, बट अपने cloud computing में जो भी servers हैं basically, तो उनका software automatically update होते रहता है। तब ऑन प्रेमिसेस में अगर देखा जाए तो यू आर लेस कोलैबोरेटेड एज कम्पेयर टूवर्ड्स द क्लाउड कंप्यूटिंग, यू आर हाईली कोलैबोरेटेड इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक डेटा कैन नॉट बी ऑल्सो एक्सेस्ड, जैसा भी मैंने बताया कि लाइक लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर अभी डेटा हर जगह एक्सेस नहीं कर सकते ना, इसीलिए। और यहाँ पे भी वही पॉइंट मैंने बताया कि यस कंपेयर टूवर्ड्स द क्लाउड कंप्यूटिंग में हम डेटा वर्ल्ड के किसी भी कोने से उसको एक्सेस कर सकते हैं विथ द क्रेडेंशियल्स। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन टाइम। अब मैं सर्वर्स खड़े करने जाऊंगा या सर्वर इम्प्लांट करने जाऊंगा तो उसमें कितना टाइम जाएगा, प्लस इंजीनियर, सीए, वो सब लगेंगे। बट इसके अंदर मेरे को उतना क्लाउड कंप्यूटिंग में उतना सर पटकने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, बस मेरे को एक वीएम क्रिएट करना है, तो डेटा सर्वर्स लेने हैं, उसके अंदर इम्प्लांट सब कुछ कर देना है सब्सक्रिप्शन के अंदर। अब इसमें पे एज यू गो ऑप्शन रहता है। तो पे एज यू गो ऑप्शन मीन्स क्या होता है कि लाइक आप जितना पे मीन्स जितना यूज़ करोगे, लाइक जितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप रिसोर्सेस, जितने मल्टीपल ऑफ रिसोर्सेस आपको यूज़ में आ रहे हैं, एंड ऑफ द टाइम फिर वो आपका बिलिंग होगा। फिर बिलिंग में जो आपके डेटास के मीन्स जो भी आपने रिसोर्सेस यूज़ किए हैं, फिर उसकी बिल आती है, फिर आपको वो पे करना पड़ता है। दैट इज पे एज यू गो ऑप्शन। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। दिस वाज द ऐसा निकेश इज ट्राइंग टू कन्विंस रजनीश, सो गो फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द ऑन प्रेमिसेस डेटाबेसेस। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं कि देख लिया कि हाँ भाई इतने सारे डिफरेंस होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में और इसमें ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस में। तो अब चेक करते हैं कि भाई व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपल सी भाषा में अगर बताया जाए कि लाइक आप कुछ भी चीज़, अगर अब ये वीडियो आप देख पा रहे हो, ठीक है, अगर अब जो ये वीडियो मैंने अभी ये यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है या कहीं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया है, तो इसको अब देखने के लिए अभी आपको कोई मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ के। बस आपको क्या करना है, आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए और उस इंटरनेट के थ्रू आप यूट्यूब के डेटा सर्वर से मीन्स इस वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हो, इस वीडियो को देख पा रहे हो। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है। मतलब
क्या हो रहा है कि मैंने कोई चीज़ कहीं पे अपलोड करी और वो चीज़ फिर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से उस चीज़ को देख पा रहे हो। मीन्स क्या काम हो रहा है कि डिलीवरी, अब ये कंप्यूटिंग सर्विस हो गया ना, तो वो डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट, पूरे इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज अवर क्लाउड कंप्यूटिंग। सो व्हाट वी कैन से लाइक कंप्यूटिंग सर्विस में क्या क्या आएगा, लाइक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है उसके अंदर, फिर हमारे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। सो बेसिकली इसी के अंदर अपना जो न्यू ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जो अभी के टाइम पे आ रही है, लाइक रोबोटिक्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मच मोर थिंग दैट इज कमिंग दिस टाइम। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेस द इंटरनेट टू डिलीवर दिस सर्विस। अब मैंने जैसे बताया ना कि लाइक आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट होना चाहिए, सिंपल सी बात है यार, इंटरनेट है तभी आप चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे। तो वो चाहे कितना भी बड़ा डेटा रहे, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है और आपके पास प्रॉपर क्रेडेंशियल्स है, आप ये वीडियो को अगर मैं प्राइवेट कर दिया तो आप नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि अब ये मेरा अपना प्राइवेसी हो गया कि नहीं भाई मेरे को सबको नहीं दिखाना है। दैट्स अनदर थिंग। अगर मैं इसको पब्लिक रखूंगा तभी आप देख पा रहे हो, तो वही यहाँ पे विद प्रॉपर क्रेडेंशियल्स आपको डेटा मिलना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक दैट मीन इफ यू नीडेड टू इंक्रीज योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली, अगर आपकी कंपनी या आपके स्टार्टअप्स को, आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को रैपिडली ग्रोथ करना है, तो आपको कोई रुकने की जरूरत नहीं किसी चीज़ के लिए। जस्ट गो टूवर्ड्स द क्लाउड कंप्यूटिंग, आपको सारी फ्लेक्सिबिलिटीज मिलेंगी एकदम। कोई आपका 50% ऑफ जो टास्क है जो आप मैनुअली परफॉर्म करते हो वो आपका ऐसे हो जाएगा, मीन्स ऑटोमेट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आप देखते हैं कि लाइक टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है क्या। अभी हम लोग ने तो ये तो देख लिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों नेसेसरी है, एंड देन व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग। अनदर थिंग इज लाइक व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, वो भी देख लिया, दैट इज डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक अब व्हाट आर द डिफरेंस, मीन्स अब लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग में दो मॉडल होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो, दैट इज डेवलपमेंट मॉडल एंड सर्विस मॉडल। सो बेसिकली डेवलपमेंट मॉडल में हमारे ये आते हैं लाइक पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, एंड देन सर्विस मॉडल में क्या आता है IaaS, PaaS, SaaS। इफ यू आर a technology guy then you might know these three terms like IaaS, PaaS, SaaS, that is infrastructure as a service, then platform as a service, then software as a service। so basically इंफ्रास्ट्रक्चर, देन हम एक एक चीज़ देखते हैं, नो वरीज, बट ये एक अपना टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है, एक फ्लो चार्ट। द अनदर थिंग इज लाइक टाइप्स ऑफ जो हम लोग ने डिप्लॉयमेंट मॉडल अभी देखा, तो उसके अंदर ये प्राइवेट क्लाउड अभी हम लोग बात कर रहे थे। प्राइवेट क्लाउड इज नथिंग बट, अभी जैसे मैंने अभी बात किया था कि ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस। अब ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस में मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे कंपनी के अंदर मैं जो भी चीज़ें को एक मीन्स एक डेटा सर्वर्स मैंने खड़े कर दिया और फिर उसके अंदर अपनी कंपनी के सारे डेटास को सेव करते जा रहा हूँ, तो मेरी कंपनी के अलावा वो डेटा और कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो कॉन्फिडेंशियल डेटा या जो भी चीज़ है वो मेरी कंपनी के अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो और मेरे को किसी को दिखाना भी नहीं कि लाइक दिस मच अमाउंट ऑफ डेटा आई एम हैविंग, दिस मच अमाउंट ऑफ डेटा सर्वर्स I'm having. So basically I'll go with private cloud, जैसे यहाँ पे लिखा है। So a private cloud is same with the natural evolution of a corporate data center। मीन्स तुम्हारे कॉर्पोरेट के अंदर जो डेटा सेंटर है वही है तुम्हारा प्राइवेट क्लाउड, इट्स कोई बड़ा चीज़ नहीं है। एंड प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड मच मोर ग्रेटर कंट्रोल फॉर द कंपनी एंड IT डिपार्टमेंट। अब तुम्हारे सामने डेटा चीज़, अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम तुरंत सही कर सकते हो उसको। ये भी एक एडवांटेज है प्राइवेट क्लाउड का। फिर द अनदर थिंग इज लाइक फाइनली अ प्राइवेट क्लाउड मे बी होस्टेड फ्रॉम योर ओन साइड डेटा सेंटर। ऑन साइड डेटा सेंटर मतलब कि जो तुम्हारी कंपनी जहाँ पे है तुम वहीं पे डेटा सेंटर को स्टार्ट कर सकते हो, अपने वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो सारी चीज़ों को। सो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेटा सेंटर है और वहाँ पे तुम सारे अपने डेटा को स्टोर कर रहे हो, तो डेटा स्टोरेज के लिए जो चीज़ उसको हम एज अ क्लाउड टर्म में परफॉर्म करते हैं। तो प्राइवेट है तुम्हारे लिए, तुम किसी को एक्सेस नहीं दे रहे हो उस डेटा सेंटर का, तो वो तुम्हारे लिए ये टर्म क्या हो जाएगा, इट्स अ प्राइवेट क्लाउड बेसिकली। ओके, नेक्स्ट थिंग अभी देखते हैं व्हाट इज पब्लिक क्लाउड। अभी हम लोग ने इतनी सारी बात देखी कि मैं यूट्यूब से डेटा अपलोड कर रहा हूँ, मीन्स ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, फिर तुमको एक्सेसिबल है। तो एक्सेसिबल क्यों है? क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है कि पब्लिक क्लाउड इज बिल्ट, कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर। जो CSP होता है, जो क्लाउड सर्विस को अपने प्रोवाइड करता है, लाइक मल्टीपल CSPs के मैंने स्टार्टिंग में नाम लिए थे, अगर आपको याद हो तो। इट्स लाइक AWS, दैट इज Amazon वेब सर्विसेज, देन Microsoft Azure, then our IBM data storage means
and then GCP is there, that is Google Cloud Platform, and multiple more are there who provide this public cloud data services towards you. It's like general public availability, means here the data which are freely publicly available, means अभी पब्लिक क्लाउड यूज़ करूँगा तो मेरे को ऑन प्रेम का कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड देन द अनदर थिंग क्या होगा कि मैं सारी चीज़ें इनके ऑन साइट पे, जो AWS का अगर मैं यूज़ करता हूँ या एजोर का यूज़ करता हूँ, तो मैं एजोर के डेटा सेंटर में सारी चीज़ें स्टोर करूँ. एजोर का डेटा सेंटर मेरे कंपनी में नहीं है, बट वो उनकी कंपनी में, जो वहाँ के बड़े बड़े इंजीनियर्स उसको मेंटेन कर रहे, और मैंने जैसे अपना डेटा रखा और मैं अपने डेटा को रख के यूज़ कर रहा हूँ. दैट्स इट. इतना ही पब्लिक क्लाउड का अपना काम आ रहा है. हम लोग को कुछ झंझट मारी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. दैट इज़ द वेरी बिग एडवांटेज ऑफ दिस पब्लिक क्लाउड. एंड अब आप लोगों ने देखा कि प्राइवेट क्लाउड क्या, व्हाट इज़ प्राइवेट क्लाउड, एंड बेसिकली एंड देन अदर थिंग इज लाइक व्हाट इज़ पब्लिक. सो इफ़ वी आर कोलैबोरेटिंग दिस, इफ़ यू आर मर्जिंग दिस बोथ, लाइक पब्लिक क्लाउड को भी मिला रहे हैं और प्राइवेट क्लाउड को भी मिला रहे हैं, अगर मेरी कंपनी है और मैं उस कंपनी के अंदर पब्लिक क्लाउड भी इस्तेमाल करता हूँ एंड प्राइवेट क्लाउड भी यूज़ करता हूँ, मैं पब्लिक प्राइवेट दोनों यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं हाइब्रिड क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ. इस टर्म में ये बोला जाएगा कि मैं हाइब्रिड क्लाउड को यूज़ कर रहा हूँ. The another thing is like hybrid cloud computing is computing environment that uses both public and a private cloud in an interconnected environment. अब मेरा ये इससे इंटीग्रेटेड होगा और मीन्स पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड से इंटीग्रेटेड होगा एंड प्राइवेट क्लाउड अपना पब्लिक क्लाउड से इंटीग्रेटेड, मीन्स डेटा के शेयरिंग ईजिली एक्सेसिबल रहेंगे. दिस द अनदर थिंग इज, देखते हैं कि लाइक टाइप्स ऑफ द CSPs जो मैंने अभी बात की है, मल्टीपल CSPs दैट आर प्रेजेंट इन आवर मार्केट, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, देन अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग, देन अलीबाबा क्लाउड, देन IBM क्लाउड, VMware क्लाउड, एंड मल्टीपल्स आर देयर, मल्टीपल CSPs that provide the cloud services. Let's see Azure portal here. So basically the Azure is a service, cloud service provided by the company named as a Microsoft. You might aware of it. The another thing is like the Azure portal. What is Azure portal basically? Let's see. The Azure portal is a web-based unified console. Means you can do here an alternative means here alternative command line tools are there with which you can create your own VMs in an instance only, and you can build, manage and monitor everything from simple web app to complex cloud deployments. Another thing is like you can configure accessibility options for an optimal experience. Then you can also create your own custom dashboard for an organized view of resources, like if thousands of resources are present into the Azure portal, and from the thousands you just need 10, so you can create your own custom dashboard with that 10 resources only. You don't have to see that those thousands resources multiple times whenever you open your VM or anything. Okay, that was about the Azure portal. Let's see how Azure portal look like. Yep, you can see here in Azure services you can see you can create a resource also. Then here multiple resources are also present, like source groups, virtual machines, app services, then Kubernetes services, then Azure Cosmos DB, then SQL database, and multiples are there. And in the navigation section you can also see a subscription that you had borrowed, then the source groups, all resources, and the dashboard that you need to create your custom one. Multiple things are present into this Azure portal. Okay, let's see. We have seen now. अब ये पॉइंट पे आते आते अब आप लोग के माइंड में इतनी चीज़ें तो बैठ गई है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों नेसेसरी है, डिफरेंस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑन प्रेमिसेस डेटाबेसेस में, एंड व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. अब जब इतनी सारी चीज़ें लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये है, वो है, तो अब कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट है तो उसकी सिक्योरिटी भी नेसेसरी होगी. अगर मैंने एक बंगलो ले लिया, लाइक मेरा बंगलो है 20 करोड़ का, और 20 करोड़ के बंगलो में मैंने एक भी वॉचमैन नहीं रखा, तो क्या होगा, कोई भी बंदा या कोई भी रॉबर आके उसके अंदर चोरी कर लेगा, फिर या मेरा सामान लेके चले जाएगा, मेरे को पता भी नहीं चलेगा. तो अब लाइक अगर हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी भी उसी लेवल की होनी चाहिए. अब क्लाउड जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो क्लाउड की सिक्योरिटी भी उतनी बड़ी लेवल पे होनी चाहिए. सेम. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज लाइक क्लाउड सिक्योरिटी क्या है. लेट्स सी. सो इट्स नथिंग बट protecting and ensuring the integrity of the cloud IT infrastructure.
जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ हो रहा है उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रखना, यही क्लाउड सिक्योरिटी और कुछ भी नहीं है। देन आईटी इंक्लूड्स अभी मीन्स लाइक जो हम लोग ने बात किया है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके अंदर क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है यूज़र का, डिवाइस का। देन एक्सेस कंट्रोल होता है, एक्सेस कंट्रोल मीन्स तुमको किस रिसोर्स का एक्सेस है। एंड देन डेटा ट्रांसमिशन प्राइवेसी, तुम किसको डेटा भेज रहे हो, कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है। एंड अनदर थिंग इज लाइक रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर इनटू दिस IT infrastructure. Okay, the another thing is like डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्लाउड। अब क्लाउड सिक्योरिटी, अगर मैं प्राइवेट क्लाउड की बात करूँ तो उसकी सिक्योरिटी अलग होगी, अगर पब्लिक क्लाउड की बात करूँ तो उसकी सिक्योरिटी अलग होगी, अगर हाइब्रिड की बात करूँ तो उसकी सिक्योरिटी पब्लिक और प्राइवेट दोनों से डिफरेंट होगी। तो ऐसा होता है कि लाइक इट्स द क्लाउड सिक्योरिटी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन वॉट टाइप ऑफ द क्लाउड यू आर यूजिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि वाई क्लाउड। अब क्लाउड सिक्योरिटी क्या है ये हम लोग ने देख लिया, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये क्यों नेसेसरी है, क्यों इतना ज़रूरी है क्लाउड सिक्योरिटी। सो बेसिकली सिंपली पुट योर, एक एग्जांपल लेते हैं, पुट योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन द क्लाउड एंड हेंस इट्स सिक्योरिटी इज एसेंशियल द सिक्योरिटी ऑफ योर बिजनेस। अगर मेरी एक कंपनी है, मैंने अपने सारे डेटास को क्लाउड पे प्रोवाइड कर दिया, मैंने बिना ये जाने कि उस पर क्या सिक्योरिटी है क्या नहीं है, उसका एक्सेस किसको है क्या है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट आगे चल के जनरेट हो रहा है वो, अगर मेरे को ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। द क्लाउड सिक्योरिटी इज अ टॉप प्रायोरिटी, मीन्स टॉप प्रायोरिटी पे ही रहना चाहिए तुम्हारी क्लाउड की जो भी सिक्योरिटी, क्योंकि तुम ऑन साइट नहीं होस्ट कर रहे हो यार अपनी चीज़ों को, किसी और के डेटा सेंटर में स्टोर कर रहे हो, तो अगर उसकी सिक्योरिटी नहीं है तो तुम कैसे श्योर हो कि लाइक तुम्हारा डेटा प्रोटेक्ट है। कल को उसने अगर किसी को बेच दिया या कुछ भी कर दिया तो उसकी तुमको तो कुछ नहीं बोलेगा अगर तुमने सिक्योरिटी नहीं चेकअप किया रहेगा। दैट्स वाई द क्लाउड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बेसिकली, नॉट जस्ट हैविंग एन मल्टीपल थिंग्स आर देयर इन विच यू हैव टू सी in terms of this cloud security while taking the subscription or doing the things online. So basically बिजनेस स्टोर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब लाइक अगर मेरे कंपनी है तो इसमें क्या क्या होगा, लाइक कस्टमर के फाइनेंशियल डेटा डिटेल्स होंगे, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होंगी जो मेरी कंपनी की, देन सेल्स का रिकॉर्ड होगा विच कॉल्ड इररिपेयरेबल डैमेज इफ लीक, अगर ये लीक हो गया तो कितने लॉस हो गए मुझे। देन देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू एम्प्लॉय द मोस्ट सिक्योरिटी मेजर, जितने भी सिक्योरिटी मेजर हम अपने डेटा को सिक्योर करने के रख सकते हैं हम उतने यूज़ करेंगे। And in the last this quote from my side, it's like never underestimate the ethical power in you because it can create a knowledge shower in a crew. That's one. Thank you everyone for your complete collaboration, for having your ears on my words. If you have any doubt, so you are always welcome in the comment section, or you can reach our ICS family for any queries. Thank you everyone. Thank you.